العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، گزشتہ ہم نے سورہ السجدہ کا ترجمہ کیا اور اس سے متعلق ضروری باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی. آج کے مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ احزاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس سے متعلق ضروری باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر ترجمہ. سورہ احزاب یہ مدنی صورت ہے. گزشتہ صورت کا موضوع قرآن کریم تھا. قرآن کریم تھا اور اس صورت کا موضوع صاحب قرآن ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوری صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتی ہے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ سنا کریں اور ان کو بکواس کرنے دیتے رہیں، ان کی طرف توجہ اور دھیان نہ دیں. تو یہاں پر 3 معاملات کا ذکر کیا جا رہا ہے. نمبر 1، منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 دلا کا لفظ کہا تھا، یعنی پیغمبر علیہ السلام کو 2 دل ہیں. جیسے قرآن نے 2 رخا، منافق چونکہ 2 رخا ہوتا ہے تو 2 رخا کی رد کی تھی، تو اس کے رد میں مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 دل کا لفظ استعمال کیا تھا کہ ان کے سینے میں 2 دل ہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوا کرتے. لیکن مشرکین نے پیغمبر علیہ السلام سے متعلق استہزاءً اور تمسخراً یہ لفظ کہا تھا، یہ الزام نعوذ باللہ لگایا تھا کہ آپ کو 2 دل ہیں. اور کیوں کہا تھا؟ جب آیتیں آئیں گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس موقع پر بتائیں گے. دوسری بات، لے پالک کا مطلب یہ ہے کہ جس کو انسان گود لیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اولاد کی طرح اس کو رکھتا ہے. لیکن لے پالک جو ہے انسان کی نسبی اور صلبی اولاد نہیں ہوا کرتی. روحانی اولاد کا درجہ الگ ہے اور نسبی اور صلبی اولاد کا درجہ الگ ہے. انسان کو چاہے جتنی محبت ہو اپنے روحانی اولاد سے، لیکن وہ صلبی اولاد نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر اس کی تردید فرمائی ہے. نمبر 2، غزوہ احزاب کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے اور اس میں منافقین کا کردار بھی واضح کیا گیا. یہ غزوہ اسلام کی شان و شوکت مٹانے اور نعوذ باللہ اسلام کی طاقت کو اکھاڑنے کی کوشش تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے عظیم کارنامے بیان کیے گئے. اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا مختصر تذکرہ کر کے بتایا کہ غزوہ احزاب میں کفار تو نامراد لوٹے مگر مسلمان آسودہ ہو گئے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس مال سے استفادہ نہیں کیا. ازواج نے آسودگی چاہی تو آپ ناراض ہو گئے. یہ تمام چیزیں مختصر طور پر بیان کی جا رہی ہیں. جب آیتیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس کے متعلق گفتگو ہوں گی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا معاملہ. اس معاملے میں منافقین کی ہرزہ سرائیاں
और उनकी बदमाशियाँ ज़िक्र की गई हैं कि उन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को किस किस नौइयत से सताया है। और फिर उसके बाद जनाब मन आपके दीगर मज़ामीन शुरू हुए हैं और ज़िक्र किए गए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल औरतों का बयान। और ये बयान है कि आप पर अज़वाज में बारी मुकर्रर करना वाजिब नहीं था। फिर हिजाब का बयान शुरू हुआ, फिर दुरूद शरीफ का तस्करा आया और मुसलमान औरतों को हुक्म दिया गया कि वो किसी ज़रूरत से निकले तो चेहरा ढांक कर निकले। फिर आखिर में मुमिनीन को तंबी की गई कि वो निकाह ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के मामले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सताएं, परेशान न करें। और फिर उसके बाद बिलाखिर यह मज़मून है कि इंसान मुकल्लफ़ है और जब उसने बारे अमानत उठाया है तो उसकी लाज रखे, यानी कुरान करीम के अहकामात की लाज रखे और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। ये मुख्तसर इब्तिदाई बातें थी और जैसे आयतें आती रहेंगी तो इंशाअल्लाह हम उसकी तरफ आपको मुतवज्जे करते रहेंगे। कुरान करीम की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा वत्तबि' मा युहा इलैक मिन रब्बिक इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। यहाँ पर कफ़ा के अंदर कफ़ा के फ़ाइल पर बा ज़ायदा है और वकीलन हाल या बदल है। इन आयतों में अल्लाह ताला फरमा रहे, देखिए गुज़िश्ता सूरत का मौजू जैसे हमने बताया कुरान करीम था और इस सूरत का मौजू साहिब कुरान। गुज़िश्ता सूरत के आखिर में था कि कुफ़ार का ये मुतालबा नज़रअंदाज कर दें कि फ़ैसला कब होगा, यानी क़यामत का फ़ैसला कब होगा। और अब ये सूरत इस हुक्म से शुरू हो रही है कि आप काफिरों और मुनाफिकों का कहना न माने, उनके एतबार से परेशान न हो, उनकी बातों को नज़रअंदाज करें। आप जब उनकी बातें नहीं माननी है तो किसकी बातें माननी है? तो कुरान उसका तज़किरा कर रहा है कि आप वही की पैरवी कीजिए और अल्लाह पे भरोसा कीजिए। अल्लाह की ज़ात बड़ी ज़बरदस्त है, ताकतवर है और अल्लाह आपको फ़ाइज़ुल मराम करेंगे, यानी कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे और मुखालिफिन मुनाफिकीन ये अपनी मुँह की खाएंगे और आपकी कामयाबी की तरफ देखते रहेंगे। इसलिए कुरान ने कहा, या अय्युहन नबी, ए नबी, अल्लाह से डर, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहिए, यानी कि आप इन मुनाफिकीन से न डरिए बल्कि अल्लाह से डरते रहिए। डरते रहिए का तर्जमा इसलिए है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम शुरू ही से अपने आगाज़ ज़िंदगी से ही अल्लाह के ज़ात से डरते रहे हैं। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया कि उसमें तसलसल और इस्तिमरार रखिए, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहिए। और हाँ, वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन, काफिर और मुनाफ़िक़ीन का कहा न मानिए, यानी कि उनके बात न मानिए और आपको परेशान करने की जो राह उन्होंने इख्तियार की है उसका खुमियाजा खुद भुगतेंगे और आप उनके चालों को कामयाब न होने दीजिए। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले और बड़ी हिकमत वाले हैं। क्या कहा कुरान, इन्नल्लाह कान अलीमन खबीरा, अलीम सीग़े सिफत फ़ाइल को वज़न पर, खूब जानने वाले, और हकीम भी वही है। तो अल्लाह खूब जानने वाले भी हैं और अल्लाह हिकमत के साथ काम करने वाले भी हैं। यानी मुखालिफिन के अहवाल से अल्लाह ताला खूब वाकिफ़ हैं और उनके मामलात से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। इसलिए आप उनसे परेशान न होइए और आप अपना काम करते रहिए और इस वही की पैरवी की, इत्तबि मा उहिया इलैक, और उस वही की पैरवी की जो आपकी तरफ वही की गई है, वत्तबि मा युहा इलैक मिन रब्बिक, और आप पैरवी कीजिए उस चीज़ की जो वही की गई आपकी तरफ आपके रब की जानिब से, मिन रब्बिक, आपके रब की जानिब से। इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा, कि तुम जो कुछ करते हो आपके परवरदिगार की जानिब से जो कुछ उतारा गया है आप उसकी पैरवी कीजिए। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल और अहवाल की खबर रखता है,
यानी कि इंसान का कोई हाल, कोई कौल, कोई अमल अल्लाह की ज़ात से मख्फी और पोशीदा नहीं है। इसलिए इंसान को अल्लाह से डरते रहना चाहिए। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके पूरी दुनियाए इंसानियत से कहा जा रहा है कि आप परेशान हाल न हो, हमारी आपके निगरानी और हमारी निगाहें आपके साथ हैं, आप परेशान न हो, हमारी ताकत आपके साथ है। और जब आप काफिरों की बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी बात मानेंगे? अल्लाह की बात मानेंगे। अल्लाह की मानना है और अल्लाह के बताए अहकामात पर अमल पैरा होना है। इसलिए फरमाया अल्लाह ताला ने कि बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों की, तुम्हारे अमल की खूब खबर रखते हैं और अल्लाह पर भरोसा कीजिए और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। ये दोनों बातों की वजह बयान की। काफिरों और मुनाफिकों की बात इसलिए नहीं माननी, याद रखिए बच्चे, बहुत अहम बात है। काफिरों और मुनाफिकों की बात इसलिए नहीं माननी है कि वो काम बिगाड़ू लोग हैं। क्या लोग हैं वो? काम बिगाड़ू लोग हैं। और अल्लाह की और अल्लाह के अहकाम की बात इसलिए माननी है कि अल्लाह कारसाज हैं और अल्लाह काम बनाने वाले हैं। अल्लाह कारसाज हैं और अल्लाह काम बनाने वाले हैं। मुनाफिकीन और काफिरीन ये काम बिगाड़ने वाले हैं। तो जो इंसान काम बिगाड़ने वाला हो उसकी बात क्यों मानने की? और जो ज़ात इंसान का काम बनाने वाली है और इंसान को नेक नामी देने वाली है, इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान उसके अहकाम की पैरवी करे और उसकी बात माने। और फिर जैसे अब मैंने एक तस्करा किया, आगे उसका तस्करा आ रहा है कि मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फ़ी जौफ़िही व मा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्न उम्महातिकुम मा जअल अदइयाअकुम अब्नाअकुम ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما। यहाँ पर देखिए, अल्लाह जौफ के माने तो आपको मालूम है दिल के माने में है, और अल्लाह ये इसमें मौसूल है जमा मुअन्नस, अल्लती की जमा है वो औरतें। और तुज़ाहिरून मुज़ाहरा से यहाँ पर जिहार मुराद है, यानी जिहार के माने क्या है? जिहार करना। आपने फ़िक़ियात में पढ़ा होगा, फ़िक़्ह किताबों में जिहार किसे कहते हैं? शौहर का बीवी से ये कहना कि तू मेरे लिए मेरे माँ की तरह है, यानी तू मेरे लिए मेरे माँ की पीठ की तरह है। इसलिए ज़हरुन से जिहार जी, अपनी बीवी के पीठ, यानी एक आज़ू से मुतालिक औरत से ये कहना कि तेरी पीठ मेरे माँ की तरह है, यानी कि तू मेरी माँ की तरह है, तो मेरी माँ की तरह मुझ पर हराम है। ये आपके शरीयत में जायज़ नहीं, हराम है। हाँ, इसको जिहार से बीवी कफ़ारा अदा करने तक हराम होती है। जिहार से बीवी कफ़ारा अदा करने तक हराम होती है, हमेशा के लिए हराम नहीं होती। तो यहाँ पर तुज़ाहिरून मिनहुन्न उम्महातिकुम वमा जअल अदइया ये दइयुन के जमा अदइया, मुँह बोले बेटे। दइयुन की जमा अदइया, मुँह बोले बेटे यानी जिस बच्चे को इंसान अपनी तरबियत में लेता है, गोद में लेता है, जबकि वो बच्चा या बच्ची उसकी हकीकी औलाद नहीं होती, किसी और की होती है, लेकिन इंसान उसको अपनी गोद लेता है, उसे कहते हैं ले पालक। उसे क्या कहते हैं? ले पालक। तो कुरान यहाँ पर इशारा कर दिया, ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, अफ़वाह फू के जमा अफ़वाह, इसके माने मुँह। और इससे मुराद है कि इंसान के मुँह की बात है, मतलब है कि लोगों के चर्चे की बात है, शरीयत के इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
और अल्लाह हक बात कहता है और सही रास्ता सुझा देता है। हाँ, जो ले पालक हैं तो उनको उनके बापों के नामों से पुकारो। उदउहुम ली आबाई माना ज़ालिका बि मआ अस्माई आबाइहिम, मआ अस्माई आबाइहिम। उन ले पालक बच्चों को उनके हकीकी बाप के नाम के साथ पुकारो। और ये ज़्यादा इंसाफ की बात है अल्लाह के पास और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हाँ, अगर तुम्हें उनके बाप दादा का, उनके बापों का इल्म न हो, उनके बाप के नाम के इल्म न हो, तो ठीक हो, तुम्हारे दीनी भाई हैं और तुम्हारे आपके दस्तनिगर हैं, आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, लेकिन जो तुमसे गलती हो चुकी उसमें कोई आपके गुनाह नहीं है। लेकिन इसके बाद अलबत्ता जानबूझ के काम नहीं करना चाहिए। गुनाह तो उस वक्त है जब इंसान जानबूझकर मा तअम्मदत कुलूबुकुम, जिस पर तुम्हारे दिल जम जाए जानबूझ के हो, उस पर गुनाह है और अल्लाह माफ़ करने वाले बेनियाज हैं। अब यहाँ से जो आयत हमने बतलाई उसकी तरफ इशारा है कि मुनाफिकों की एक मुहम्मल बात की मिसाल दे रहे हैं। मुनाफिकों की एक मुहम्मल बात की मिसाल दे रहे हैं। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो दिला कहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो दिला कहा था। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3223 और तिरमिज़ी शरीफ तफसीर अहज़ाब में रिवायत है। अबू ज़ैबान ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आयत करीमा वमा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फ़ी जौफ़िही की मुराद मालूम की। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, आपके दिल में कोई बात खटकी, आपके दिल में कोई बात खटकी। तो मुनाफिकों ने जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ रहे थे कहा कि अला तरा अन्ना लहू क़ल्बैन, अला तरा अन्ना लहू क़ल्बैन क़ल्बन मअकुम व क़ल्बन मअहुम, क्या तुम देखते नहीं कि इनके दो दिल हैं, इनके दो दिल हैं, एक दिल तुम्हारे साथ और दूसरा दिल सहाबा के साथ। इस पर ये कुरान करीम की आयत उतरी कि मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फ़ी जौफ़िही, कि अल्लाह ने किसी के सीने में दो दिल नहीं बनाए। यह महज तुम्हारे अपने मुंह की बात है, कही भी बात है। अल्लाह ने पैगम्बर अलैहिस्सलाम के दिल में, सीने में दो दिल नहीं बनाए। तो अक्सर इसमें तफजील ज़्यादा इंसाफ की बात पूरा करने वाला और मवाली मौला की जमा आज़ाद करदा ग़ुलाम जो बहुत करीब रहते हैं। तो ये मुख्तसर बातें थी और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इन आयतों का तर्जमा करेंगे इसके आइंदा मजलिस में इंशाल्लाह वल अज़ीज़। अब तक के इसके लिए यहाँ पर हम रोकते हैं कलाम को और आइंदा मजलिस में इंशाल्लाह इन आयतों का तर्जमा भी करेंगे और बाक़ियात की तरफ आपको इंशाल्लाह इशारा भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.